ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਐਨ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਟੌਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਾਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ 150 ਰੁਪੀਜ਼, ਅਤੇ ਥਰਡ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ 200 ਰੁਪੀਜ਼, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਬਰਥਡੇ ਕਰੀਏ 250 ਰੁਪੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਰਾਮ 20 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਟਰਮਸ 300 350 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਕੇ 60 ਟਰਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਮ ਆਫ ਐਨ AP ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ 10 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਐਂਡ 10। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, S ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 9, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 7, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 1 ਦੇ ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 10 ਟਰਮਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ 2s ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ 10 + 1 11, ਇੱਥੇ 9 + 2 11, ਇੱਥੇ 8 + 3 11। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 9 + 2 11, 10 + 1 11 11 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਆਇਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਕੇ 10 ਟਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 10 ਟਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਆਇਆ ਉਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਨੂੰ 1 ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ 10, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਫਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਓਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ 2s ਆ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ n ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ n ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ a + l ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2 ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 11 × 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ 55। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਫਸਟ 10 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ 55 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ S ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣੀ n ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ n ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੇ nth ਟਰਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ L ਨੂੰ
लिख सकते हैं ए प्लस ए एन जी अपनी आह वाली आइडेंटिटी आ। ये आइडेंटिटी कितों आई मैनू लगता तुहानू पता लग गया होना। जिहड़ा ये आपां एस मन्निया ये की हैगा सम ऑफ फर्स्ट एन नंबरस। किसी भी ए पी दे एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम जिहड़ा बनिया n/2 ए प्लस ए एन। हुण आपां देखते हैं कि दूसरी आइडेंटिटी कितों आई। आपां नू ये भी पता है कि आपां लास्ट एक्सरसाइज स्टडी कीता ए एन की हुंदा वो हुंदा ए प्लस n-1 इंटू डी। जे ए एन की वैल्यू आप इतने सबस्टिट्यूट करिए तो की बनेगा, तो ये सबस्टिट्यूट करके बनना n/2 ए अपना एज इट रहे ना, तो ए एन की जगह की होना है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो जो अपन फर्दर ऐड करिए तो यह बनना n/2 ए प्लस ए बनना अपना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अपन दो आइडेंटिटी ने। ये सैकेंड आइडेंटिटी आप इतने ड्राइव की भी कितों आई। हम आप किसी भी तरीके जिहड़ियां दो तरीके दी प्रॉब्लम्स बन गई। पहली तो यह जो आपको फस्ट तो लास्ट टर्म की नॉलेज है उदों आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो जो आप लास्ट टर्म आपको नहीं पता, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, तो आप एन का यूज करके ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। दोनों केसिस के आप ए पी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। हुण आप देखते हैं कि राम नूं जो 20 ईयर्स का होए ना वो तो कितनी टोटल मनी है जी कलैक्ट हो जानी है। तो हम इतने डेफिनेट सी गल जी ए की वैल्यू होगी हो गया फस्ट टर्म जो फस्ट ईयर उन्हें किन्ने रुपीज़ उसकी मां ने दिते तो हो गया 100 रुपीज़। तो कॉमन डिफरेंस डी ये की है भी हरेक साल वो किन्ने रुपीज़ बढ़ा रही है 150 माइनस 100 50 इतने कॉमन डिफरेंस आए ना। तो आपने लास्ट टर्म आपको नहीं पता तो आप इतने दूसरी आइडेंटिटी ए वाली यूज करांगे जिथे आपको लास्ट टर्म की नॉलेज नहीं हैगी। तो आपने किन्ने सालों तक पता करना। आपने कहा भी जो 20 सालों का हो जाना वो 20 ईयर ओल्ड हो जाना तो किन्नी टोटल मनी कलैक्ट हो जानी। तो इतने आप एन की वैल्यू की लिखांगे 20 S20 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको की हैगी 20 डिवाइड बाई 2। आइडेंटिटी आप ये वाली लानी है क्योंकि आपको लास्ट टर्म बारे नहीं पता। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस n-1 एन की वैल्यू अपने को है 20 n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने को 50। हुणे सॉल्व करके की होना ये कैंसल हो गए 10 आ जाना 2 इंटू 100 200 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 50। फर्दर सॉल्व करके ही आना 10 एज इट रहे ना 200 प्लस 19 5 95 तो ये आ जाना 950 ऐड करके ही होना 10 इंटू दोनों ऐड करके 1150 ये मल्टीप्लाई करा के आना अपना 11,500 रुपीज़। मीनिंग के राम नूं उहदे 20th बर्थडे ते किन्नी रुपीज़ जिहड़ी कलैक्ट होए ने 11,500 रुपीज़ होए ने। तो हुण आपां दोने आइडेंटिटीज़ नाल दी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये नाल दी तो वैसे हो ही गई, फिर आप दोनों की एक एग्जाम्पल लैके सॉल्व करते हैं। दोनों आइडेंटिटीज़ नाल दी आप दो प्रॉब्लम लिखिया ने, इन्होंने 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फस्ट प्रॉब्लम है आपने सम फाइंड करना इस ए पी का अप टू 10 टर्म्स। आप इस ए पी दियाँ फस्ट 10 टर्म्स का जो सम फाइंड करना। तो जो आप लिखीए तो इसका सोल्यूशन की होना फस्ट टर्म की वैल्यू आपको पता है फस्ट टर्म की वैल्यू की हैगी 2 आ। तो कॉमन डिफरेंस भी आप इतों फाइंड कर सकते हैं इजली डी 7 माइनस 2 कर लीए या 12 माइनस 7 कर लीए। जो कॉमन डिफरेंस अपना आना 5। तो आप किन्नियां टर्म्स का सम फाइंड करना आप 10 टर्म्स का सम फाइंड करना। तो हम इतने आप 10 टर्म का सम फाइंड करना तो आप लिखेंगे S10 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आप लास्ट टर्म बारे कोई नॉलेज नहीं तो आप फस्ट आइडेंटिटी के वेस्ट इनू सॉल्व करांगे। एन की वैल्यू अपने को कितनी है 10 डिवाइड बाई 2 इतने लिखेंगे आप 2 इंटू ए की वैल्यू भी 2 ही अपनी प्लस n-1 एन की वैल्यू 10 है 10-1 इंटू डी की वैल्यू अपने को है 5। फर्दर सॉल्व करके ही कैंसल आउट करके आना 5 अंदर अपने को आना 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5
45। फर्दर सॉल्व करेंगे जो 5 इंटू 4 प्लस 45 अपना 49 तो मल्टीप्लाई करके होना 245, मीनिंग कि इस AP की फस्ट 10 टर्म जो सम है वो कितना 245 है। हुण आपां सॉल्व करते हैं सैकेंड प्रॉब्लम। जिहड़ी ये सैकेंड प्रॉब्लम आ गई इहदे विच आपां नूं फस्ट टर्म बारे भी पता है तो लास्ट टर्म बारे भी पता, तो मीनिंग कि आप सैकेंड आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम अपने को प्रॉब्लम यह है कि आपको इत्थे नंबर ऑफ टर्म्स की जी काउंटिंग आ वो नहीं पता, मीनिंग कि n की वैल्यू आपको नहीं पता। तो पहला आपको n की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है। तो आप इत्थे ये देखिए कि अपने को है की है इस बार सैकेंड प्रॉब्लम के अपने को एक तो फस्ट टर्म की वैल्यू होगी a की वैल्यू होगी कितनी है 34 आ, एक अपने को लास्ट टर्म भी हैगी, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 10 तो एक अपने को इतों कॉमन डिफरेंस जो आप फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 32 माइनस 34 ये -2। तो पहला अपने को n नहीं हैगी तो आपको n की वैल्यू फाइंड करने के लिए जी बेसिक आइडेंटिटी आ an वाली आप पढ़ी आ वो लगावे, क्योंकि इतने आपको an बारे नॉलेज है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतने an की वैल्यू कितनी हैगी 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू को फाइंड करनी है तो d की वैल्यू -2। हुण ये 34 दूसरी साइड चला जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। इतने 10 माइनस 34 कितना होना -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। ये -2 इधर डिवाइड होए ना तो इतों n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होनी है -24। ये -2 डिवाइड होके इतने आए ना माइनस कैंसल 24/2 आना 12 तो n की वैल्यू ये 1 उधर ऐड होए ना 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी अपने को 13 आ गई। तो हुण अपने को जिहड़ियां भी चीज़ां आपको चाहिए सीगियां वो सारियां मिल गई। हुण आपां इत्थे ये सैकेंड आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं तो फस्ट भी लगा सकते हैं। आप सैकेंड लगाने क्योंकि लास्ट टर्म भी आपको पता कि कैलकुलेशन अपने घट जाने ने। तो इतने आप लिखांगे S30 13 क्यों लिखा क्योंकि n की वैल्यू 13 आ। तो इतने n की वैल्यू आप 13 सबस्टिट्यूट करांगे 13 डिवाइड बाई 2 a प्लस an a की वैल्यू कितनी है 34 तो an की वैल्यू कितनी है 10। फर्दर सॉल्व करके होना 13 डिवाइड बाई 2 a ऐड करके बनना 44 तो कैंसल आउट करके बनना है 22। हम जो आप 13 नू 22 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अपना आंसर आना 286। तो मीनिंग कि इस AP का जो सम आएगा 34 तो लेके 10 तक कितना आया 286 आया।